آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک انسان پر ٹکی ہوئی ہے۔ مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئے اور مسلمانوں کو لیڈ کرے تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکیں۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہے یا پھر دنیا کے ڈیفرنٹ ریلیجنز کی کتابوں میں بھی؟ امام مہدی کے آنے کی پریڈکشنز کی گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاور کا سامنا کریں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو لوگوں کو جرم سے نکال کر جیت دلائے۔ اور یہ کانسیپٹ لوگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو کسی ایسے انسان کو بھیج جو کہ انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ انہوں نے ان لوگوں کو 950 سالوں تک وارن کیا، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، سوائے کچھ نیک لوگوں کے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر اسپیشیز کے جانور کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بڑا فلڈ آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فالوورز کے ساتھ ایک نئی شروعات کی، کنوئس۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد پھر سے انسانیت بدھ پرشٹھی میں پڑ گئی۔ اس وقت کی بکس میں بھی یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو کہ اللہ کا دوست ہوگا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدھ پرشٹھ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو توحید بیان ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل ایجپٹ میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے اور گرو کرنے لگے، لیکن اس وقت ایجپٹ پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا، اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کرے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو ڈیفیٹ کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطینی میں رومانس کے انڈر تھے اور کرپٹ جوئش پریسٹ ان کے امام تھے، اور کئی وقت سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک مسیحا کے انتظار میں تھے، اور ان کی بکس میں بھی اس کے آنے کی خبریں لکھی تھیں جو کہ آج بھی بائبل میں لکھی ہے۔ اور پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو چکی تھی، تو اس وقت یہودیوں کی بکس میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں لکھی تھیں، اور اس وقت یہودی بھی اس نبی کا اسی طرح انتظار کرتے تھے جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی بائبل میں وہ پریڈکشنز لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ تو یہ جو مسیحا کا کانسیپٹ ہے، یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود اسکالر اور پوئٹ علامہ اسی وجہ سے اسلام کے امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کانسیپٹ مسلمانوں نے یہودیوں اور کرسچن سے لیا ہے۔ جب عباسی خلافت کے دور میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، تب مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ پھیلنے لگا جو سب جلد ایک مسیحا آئے گا۔ علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا کسی مسیحا کے انتظار میں ظلم سہتے رہنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ صرف علامہ اقبال ہی نہیں، اور فلسفر تھے ابن خلدون جو امام مہدی سے ریلیٹڈ حدیث کی سند سے ایگری نہیں تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام مہدی سے ریلیٹڈ حدیث تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، سوائے بخاری اور مسلم کے سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں کئی حدیث وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے آج ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں
एक मसीहा के आने की प्रिडिक्शंस मौजूद है, जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसिरिस नाम के इंसान जो जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह जोरोआस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल्कि अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज्म में भी एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दजाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेम्पल को बिल्ड करेगा। वहीं क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजुल को मानते हैं, जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी। इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया, बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। यहां तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बिडेन भी इमाम मेहदी के बारे में जानता है। I did know what the hidden mark. I did know what the hidden mark. I did know what the hidden mark. और नेतन्याहू भी ये जानता है कि मुसलमान दोबारा से खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any Western presence here and guess when and they don't want any Western presence establishing the Caliphate. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे, जिनके पास एडवांस वेपन्स हैं, जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं। वी ही नव द स्ट्रांजेस्ट इकोनॉमी, जिनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सब को शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। सीरिया में जुल्म हो रहा होगा, जो आज भी हो रहा है। After years of playing tournament, civil war in Syria is suddenly dynamic again. दी जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इजराइल बन चुका होगा, जिसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने शो किया है। The whole Middle East changes. We tear down. The wars of amity. A Frustarian brings to this entire reason. उस वक्त फिलिस्तीनी को तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद किया जाएगा, और इंडिया में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए मूवमेंट बहुत कम दावत देंगी और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया था कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी, ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है। अमेरिकी अरकान कांग्रेस से कहा, शहजादा मोहम्मद मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। तभी एक इंसान काबा के पास आएगा, जहां कुछ लोग उसकी बात करेंगे, और ये 313 जो दुनिया के डिफरेंट इलाकों से सफर करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंग बद्र में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे, जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो इंटेलिजेंट, स्ट्रांग और परहेजगार होंगे। और कई अहादीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका बड़ा मुकाम होगा, और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना फिल्म होगा। और ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे, बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैठ करेंगे, तो इसके बाद वो इमाम मेहदी की एक फौज बनाने में मदद करेंगे। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम जिंदगी गुजार रहे होंगे, वो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसा कि खुरासान, यमन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया। क्योंकि आज इन कंट्रीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह है ये अमेरिकन से नेवर एवर 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 लेट देयर कंट्री डाउन नेवर। सितंबर 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, जिसके बाद कई सालों तक सीरिया में जंग का माहौल रहा, और आज सीरिया की हालत बदतरीन हो चुकी है।
इसी तरह अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और आज उसकी हालत भी खराब है। और इसी तरह अमेरिका ने कई सालों तक अफगानिस्तान के साथ भी जंग की और आज अफगानिस्तान की हालत आपके सामने है। वहां आज इतनी गुर्बत है। और अभी मार्च में अमेरिका ने, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, अब अमेरिका यमन के साथ भी यही करना चाहता है, क्योंकि यमन फिलिस्तीनी के साथ खड़ा है और इजराइल के शिप्स पर अटैक करता है और पाकिस्तान को भी सेक्रेटली अमेरिका ही कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा कंट्री है जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहा है, जिसे इजराइल खुद अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। व्हाट्स द ग्रेटेस्ट थ्रेट राइट नाउ दैट इजराइल फेसेस ईरान? You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran. Iran and everything should be done to present Iran, the world most dangerous regime, from developing the world most stage of weapons। और अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान काफी पावरफुल है। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ईरान काफी वीक है, आप उस पर हमला क्यों नहीं करते, तो ट्रंप ने आगे से ये कहा, नाउज़द ईरान is so quick, is it the so right you say I appreciate you saying then I will make it a very strong right now and will not। ईरान ही वो कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सबसे पहले सपोर्ट करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झुंडे लहराती हुई फौजें मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में खुरासान ये था जिसमें आज का अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज का कुछ हिस्सा आता है, लेकिन इन सब कंट्रीज के इन पार्ट्स का नाम खुरासान नहीं है। ईरान में आज भी खुरासान नाम का एक प्रोविंस है। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुरासान से काले झंडे लहराते हुए फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी, और आप अच्छे से जानते हो कि काला झंडा किनका है। तो इसी वजह से ईरान वो वाहिद ऐसा कंट्री होगा जो इमाम मेहदी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि बहुत जल्द ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम एक्वायरिंग ए न्यूक्लियर वेपन डट यू वांट टू स्टार्ट एवर बी ए न्यूक्लियर वेपन्स। वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, जिसके बाद सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद इस्लामी कंट्री नहीं होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तब अमेरिका और इजराइल उससे जंग लड़ने का कभी नहीं सोचेंगे। और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जो इमाम मेहदी के ज़हूर के इंतजार में है। और ईरान वाहिद ऐसा कंट्री है जहां इस्लामिक सिस्टम है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। सऊदी अरब तो इजराइल को आयल बेच रहा है, उनके रॉकेट्स में यूज होता है, जो रॉकेट्स फिलिस्तीनियों पर गिरते हैं। और सऊदी अरब में आज भी बादशाहत का निजाम है। जब खुरासान से फौजी इमाम मेहदी को सपोर्ट करने जाएंगी तो इससे पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि अरब में एक इंसान पावर गेन कर रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खतरा होगा। तो वेस्टर्न मीडिया इमाम मेहदी पर इल्जाम लगाएगा कि वो एक टेररिस्ट है, और नेटो कंट्रीज जैसा कि अमेरिका, इजराइल इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज रवाना करेंगे। सुफियानी एक फितना होगा जिसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज होंगे। ये एक ऐसा इंसान होगा जो देखने में बड़ा ही इबादत गुजार होगा, लेकिन के मानने वालों का दुश्मन होगा, और सीरिया से निकलेगा और मुआविया की नस्ल से होगा। ये इराक और सीरिया में बहुत कत्लेआम मचाएगा। इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया, सूफियानी सीरिया से निकलेगा, उसके चेहरे का रंग लाल होगा, उसके बाल हल्के चेहरे पर निशान होगा, वो मस्जिदों को तोड़ेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को कत्ल करेगा। इमाम बाकर अलैहि सलाम ने फरमाया, सूफियानी उसी साल निकलेगा जिस साल इमाम मेहदी का सूफियानी का आना तय है। और इमाम जाफर सादिक ये इमाम मेहदी से 15 महीने पहले आएगा। इमाम जैनुल्लाब्दीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुफियानी निकलेगा तो लोगों के दिल खौफ से भर जाएंगे।
फिर इराक और सीरिया में खुलेआम खून बहेगा। वो औरतों और बच्चों को कत्ल करेगा। इसकी पर्सनालिटी मुआविया से सिमिलर होगी, जैसे मुआविया ही दोबारा इस दुनिया में आया हो, क्योंकि ये भी मुआविया की तरह अब्बू सुफियान की नस्ल से होगा। और जिस तरह मुआविया सीरिया का गवर्नर था और सीरिया में उसके काफी सपोर्टर्स थे, इसी तरह सुफियानी भी सीरिया से ही निकलेगा। और जिस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम का कैपिटल कुफा था, इसी तरह सुफियानी भी कुफे पर हमला करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेहंदी के ज़हूर से पहले सीरिया में सिविल वॉर होगी, जिसके बाद और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सीरिया में पिछले कई सालों से एक बड़ी सिविल वॉर जारी रही थी। इट इज टाइम टू एंड दिस ब्रूटल सिविल वॉर, फुल स्केल सिविल वॉर ड्रैग्ड इनटू सिविल वॉर टू एस्केप दी सिविल वॉर, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया था और जो आज सीरिया की हालत है। यहां से ऐसा लीडर निकल सकता है क्योंकि सीरिया में कई टेररिस्ट लीडर्स रहते हैं। तो जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो सूफियानी इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज भेजेगा, लेकिन वो फौज रेगिस्तान में बेदा नामी जगह पर जमीन में धंस जाएगी, जो कि अल्लाह की तरफ से एक मौजा होगा। ये देखकर जो मुसलमान इमाम मेहदी को झूठा मानते होंगे, वो भी इनकी बेहद करेंगे। यहां तक कि कुछ यहूदी और ईसाई भी इन्हें पहचान लेंगे और इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो डॉलर्स के पीछे होंगे, इमाम मेहदी को झूठा और दजाल कहेंगे और मीडिया भी फुल प्रोपागंडा चलाएगा, इन्हें झूठा कहेगा और मुसलमानों को इनके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमाम मेहदी उस वक्त तक जब दुनिया की बड़ी पावर्स के लिए एक खतरा बन चुके होंगे, तो वो एक और बड़ी आर्मी तैयार करेगा और वेस्टर्न कंट्रीज उसकी इस आर्मी में हेल्प करेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी और सुफियानी के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। यानी कि एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमाम मेहदी होंगे और दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा। इस जंग में इमाम मेहदी सुफियानी को हरा देंगे और सुफियानी को भी अरब में इमाम मेहदी की पावर मजीद सुफियानी के कत्ल के बाद और ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे। और इमाम मेहदी के जो 313 साथी होंगे, इन हर एक के नीचे कई हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे, कई ऑर्गेनाइजेशन इमाम मेहदी की सपोर्ट में आने लगेंगे। और इसी वक्त इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा और हिंदुस्तान को फटा कर लेंगे। जिसके बाद इमाम मेहदी पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे, जिसे देखकर नेटो इमाम मेहदी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेगा। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा, तो इसलिए वो इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था,